یہ جو سوال ہے نا میرے اندر مچل رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر گفتگو کریں. آج ہر چینل پہ پاکستانی بس یہی بات ہو رہی ہے, نواز شریف کو ویزا نہیں ملا, نواز شریف کو ویزا نہیں ملا, اب نواز شریف یہ کریں گے, اب نواز شریف وہ کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ جو یوتھ ہے ہماری اس کے لیے بھی تھوڑا سا آپ بتائیں کہ نواز شریف کا کردار ہے کیا. لیکن یہ جو ویزے کا معاملہ ہے نا, اس میں دو فریق ہیں, دو پارٹیز ہیں, تو یعنی ہم نے ان دونوں کو دیکھنا ہے تاکہ ہم پھر اس صحیح کنٹیکسٹ میں نواز شریف کو دیکھ سکیں. اچھا, یعنی اس میں ایک پارٹی تو برٹس ہیں, دوسری پارٹی جو ہے وہ شریفس ہیں. وہ لیکن کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. اچھا, بڑی محنت کری تھی نواز شریف صاحب کے سارے گروپ نے, اور بھارت کو بہت نوازا تھا, اور بھارت نے بڑی محنت کری تھی افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب کرنے میں, امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب کرنے میں. دیکھیے, آپ افغانستان کو صرف طالبان کی نظر سے مت دیکھیں, آپ افغانستان کو صرف اس طرح مت دیکھیں کہ ہم وہاں پر انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے. افغانستان از اے پلیس جہاں بہت سارے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے. امریکہ کی جو ہیزارڈ موومنٹ ہے اور یہاں سے وڈرال ہے, وہ اس میں جو ایک ویکیوم کریٹ کر رہا ہے. آداب, میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی. اگست کا مہینہ آتا ہے نا تو حب الوطنی کا جذبہ ہماری رگوں میں جوش مارنے لگتا ہے. میں نے بھی آج جو ہے وہ سبز رنگ کا لباس پہنا ہے. اگست کا مہینہ, جب تک میں ریکارڈ کر رہی ہوں, جب تک ریلیز ہوگا پروگرام تو 14 اگست کے اور کچھ قریب آپ آ چکے ہوں گے. بالکل آپ جذبہ دکھائیں اپنا, پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں, لیکن تھوڑا ہوش کے ساتھ. تو ہمیں ہوش یوں لینا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, سیاسی چینج کیا آ رہا ہے. جہاں بھی آپ بستے ہیں, جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں, آپ کو تھوڑا بہت پاکستان کی سیاسی خبریں بھی رکھنی ہوگی. تو اب خاص طور پر پاکستان کے موجودہ حالات پر گفتگو کرنے کے لیے, اور انٹرنیشنل لیول پر کہاں تک پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر بھی بات کریں گے ہم. ان کے لیے ہم نے دو بڑے خاص مہمانوں کو آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. فارمر ایمبیسڈر ہیں ہمارے خضر نیازی صاحب, اور نہ صرف یہ کہ ان کو یہ بھی تجربہ ہے ایز اے ایمبیسڈر, جب وہ کام کر چکے ہیں یہاں آسٹریلیا میں کینبرا میں, کہ کیا حدود ہوتی ہیں ایک ہائی کمشنر کی, ایک کونسل جنرل کی جب وہ باہر ممالک میں جاتا ہے, اور دوسرا اتنا زبردست تجزیہ کرتے ہیں اور ایسی کڑی نظر رکھتے ہیں تمام سیاسی پہلوؤں پر کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے. اس کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے سیما خان کو. سیما خان نے ہمیں میلبرن سے جوائن کیا ہے. اس وقت ابھی تک پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ اس لیے وابستہ ہیں کہ وہ میں احتیاط سے کام لوں گی کیونکہ وہ اس وقت بھی گورنمنٹ کی سرونٹ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ خدمت بھی انجام دے رہی ہیں کہ جو پی ایچ ڈی کا ٹاپک انہوں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے بلوچستان. اور جتنی نالج ہے سیما کے پاس اور جتنا دلائل کے ساتھ وہ بات کرتی ہیں, ہم انشاءاللہ آپ جب ان سے گفتگو کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا. ہم بہت معلوماتی پروگرام آپ کے لیے اور بھی فیوچر میں لے کر آنے والے ہیں, کیونکہ یہ دو بڑی بڑی شخصیات اس وقت پہچان ٹی وی کے ساتھ جوائن کر چکی ہیں. میں آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. شکریہ جی, شکریہ. تھینک یو. نیازی صاحب, ہم آپ سے شروع کریں. بڑی بے چینی ہے, بڑا یہ جو سوال ہے نا میرے اندر مچل رہا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر گفتگو کریں. آج ہر چینل پہ پاکستانی بس یہی بات ہو رہی ہے, نواز شریف کو ویزا نہیں ملا, نواز شریف کو ویزا نہیں ملا, اب نواز شریف یہ کریں گے, اب نواز شریف وہ کریں گے, مسلم لیگ نون کا فیوچر ختم ہو گیا ہے. کچھ لوگ ہمدردی پر اتر آئے ہیں, کچھ لوگ دشمنی میں بہت زیادہ نکل رہے ہیں آگے, کچھ نے کہا اسائلم لے لیں گے جس طرح کے پہلے ہمارے جو ہے کچھ سیاستدان کرتے رہے ہیں. مریم اورنگزیب نے کہا اسائلم نہیں لیں گے, ہمارا لیڈر بہت عظیم ہے, اور ان کی اپنی دختر نیک اختر نے تو ان کو نعوذ باللہ امام تک بنا دیا. میں چاہتی ہوں کہ جو یوتھ ہے ہماری اس کے لیے بھی تھوڑا سا آپ بتائیں کہ نواز شریف کا کردار ہے کیا, اور کیونکہ آپ آسٹریلیا میں بستے ہیں, آپ میرے خیال میں قانونی طور پر بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کا جو نیکسٹ موو ہوگا وہ کیا ہوگا. جی نیازی صاحب. شفق دیکھیے,
नवाज शरीफ का किरदार डेफिनेटली हम उसकी बात करेंगे, लेकिन ये जो वीजे का मामला है ना, इसमें दो फ्रीक हैं, दो पार्टीज हैं, तो यानी हमने उन दोनों को देखना है ताकि हम फिर उस सही कंटेक्स्ट में नवाज शरीफ को देख सकें। अच्छा, यानी इसमें एक पार्टी तो वो ब्रिट्स हैं, दूसरी पार्टी जो है वो शरीफ्स हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ब्रिट्स पे बात कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि लीव द ऑडियंस वेटिंग फॉर समथिंग, तो शरीफ से बात करने से पहले थोड़ी सी जो है वो बैकग्राउंड में हम देख लें कि जी ब्रिट्स। अच्छा, कि आप अंग्रेज की हिस्ट्री देखें, अगर आप कभी ब्रिटिश म्यूजियम में जाएं तो वहां आप देखेंगे कि अच्छा ये वो एम्पायर थी वो जिसके इस दुनिया में कभी सूरज कहीं गुरूब नहीं होता था। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां से उन्होंने कुछ उठा के ना ले आए हों ये। अच्छा, अब वो एम्पायर तो खत्म हो गई, वो तो सुकड़ के वो एक जजीरे में आ गए अब वो। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। वो अच्छा, डीएनए तो वही है, वो जो उनकी डीएनए में है कि किस तरह दूसरे का माल लेना है, काबू करना है, खाना है, किस तरह औरों के यानी पैरासाइट के तौर पे किसी और का माल जो है वो दबोचना है। तो इन्होंने इसलिए ये क्या करते हैं अब कि जो बाहर से इलीगल मनी को ये अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, और ये कैसे करते हैं कि पहली कि यक पंथ दो काज, एक काम करो, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, और करो इस तरह कि जिस तरह लगे कि जी बहुत नेकी का काम कर रहे हो। अच्छा, तो ये जो बाहर के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जितने भी करप्ट लीडरशिप है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जितने भी वेल टू डू पीपल हैं, वल्नरेबल किस्म के, उनको ये अट्रैक्ट करते हैं कि जी पैसा इधर ले आओ। अच्छा, उनका पैसा इधर आ गया तो इनके अपने मुल्क में पैसा आ गया। अच्छा, फिर वो जो लोग पैसे इनको भेजते हैं वो इनके आगे वल्नरेबल होते हैं, ये उनको पैट्रनाइज करते हैं, और ये फिर ऐसे लोगों को पैट्रनाइज करते हैं जो फिर ये समझते हैं कि कल ये हमारे एसेट हो सकते हैं। तो अच्छा, तो आज उनके पैसों को अपने पास बुला के प्रोटेक्शन दे के, उनको अपने पास बुला के प्रोटेक्शन दे के, उनको असाइलम दे के, उनको मेहरबानियां करके ये एक किस्म के उनको पालते हैं, और फिर वक्त आने पर ये उनको लॉन्च करते हैं और उससे ये फायदा उठाते हैं। तो मतलब है, और अगेन जैसे मैंने कहा ये करते हैं बिल्कुल ऐसे लगे कि जी हम तो ह्यूमन राइट्स की वजह से आपको पनाह दे रहे हैं, आपका जो पैसा, आपका जो हराम का पैसा, चोरी छुपा पैसा है वो तो कानून के मुताबिक है, हम तो मतलब है कोई रियायत नहीं कर रहे किसी के साथ, वो तो कानून के मुताबिक वो कर रहे हैं। यानी इसलिए इन्होंने क्या किया कि टू मेक इट लुक के वो जो लॉन्डर्ड मनी है जो इनके यहाँ रहती है उसके जी हम उसके पीछे हैं, उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ एंड रेगुलेशन बनाए हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि जी देखिए हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देंगे, इधर कानून है, रेगुलेशन है, रूल ऑफ लॉ है। लेकिन इन्होंने उस रूल एंड रेगुलेशन में लूप होल्स छोड़ दिए हैं। अच्छा, तो अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आप अगर रिपोर्ट पढ़ें, वो कहते हैं कि यूके इज द हब ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनेशनल हब है मनी लॉन्ड्रिंग का, और बिलियंस ऑफ लॉन्डर्ड पाउंड्स आर स्टैक्ड इन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स ऑफ द यूके। यानी अपने घर में नहीं, ऑफशोर में इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि वहां जो है वो पैसा लॉन्डर होके जाता है। और अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स 2021, जो दुनिया के जो 3 टॉप के ऑफशोर सेंटर्स हैं वो दे बिलोंग टू यूके। अच्छा, अब इनका तरीका वारदात क्या है शफक? वो इस तरह करते हैं कि इनके सिस्टम में आप पाकिस्तान से कहीं से भी थर्ड वर्ल्ड से आप मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा लंदन भेज देते हैं, लंदन से वो पैसा इनकी ऑफशोर कंपनी में चला जाता है, वो ऑफशोर कंपनियां फिर
यूके में बेसिक मेनली लंदन में उसको इन्वेस्ट करती हैं, और इन्होंने कानून ये बनाया हुआ है, अब उसको लीगल कवर ये दिया हुआ है कि जो ऑफशोर कंपनी जो इन्वेस्ट करेगी यूके में, उसके ऊपर प्राइवेसी लॉ होगा, उसके बारे कोई पूछ नहीं कर सकता, उसके बारे में कोई पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, आप कोई भी वो मजबूर नहीं कर सकते कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदी गई किसके नाम की है, किसकी है, अगर वो ऑफशोर कंपनी के थ्रू आए तो मतलब है दैट इज हाउ ये वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। सिमिलरली इनका एक है गोल्डन वीजा है, कोई भी 2 मिलियन पाउंड जमा करा दे और वो जाके वहां रह सकता है, कारोबार कर सकता है, ठीक है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अच्छा, अब ये तो हो गए वो पार्टी। अच्छा, अब वी कम टू नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि ये कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं है। एक इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल ने टेलीविजन पे आके ये कहा, जब नवाज शरीफ को पनामा में कैद हुई तो उसने ये कहा कि इंडिया की तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस शख्स पे, ये तो हमारा एसेट है, इसको तो हमें बचाना चाहिए। अच्छा, तो नेचुरली वो अगर वो इंडिया के ये हमें अगर पता है तो साफ जाहिर है ब्रिट्स को भी पता होगा कि साहब के क्या ज़ौक है, क्या शौक है, क्या उनके वीकनेसेस हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। अच्छा, सो नेचुरली जिस तरह जब भी वो गए, उन्होंने अप्लाई किया, रख लिया, वीजा खत्म हो गया उनका, इनफैक्ट हिज पासपोर्ट एक्सपायर्ड इन मिड फेब। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अब तक रह रहे हैं। अगेन उनके साथ कोई रियायत नहीं हुई, ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो है ही हैज बीन स्टेइंग देयर, क्योंकि वो कोविड की वजह से उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दी थी। तो अब उन्होंने दोबारा ये कहा कि नो, लाइफ इज नॉर्मल। सो देयरफॉर ही वाज आस्क्ड, ही अप्लाइड फॉर वीजा, रिन्यूअल ऑफ वीजा, एक्सटेंशन ऑफ वीजा। अच्छा, तो जब भी हम वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके साथ वीजे के वाई हमें क्यों चाहिए एक्सटेंशन, तो इसने लिखा कि जी मुझे बीमारी है, इलाज हो रहा है, तो मुझे उसके लिए एक्सटेंशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी कोई सबूत भी दो कि बीमारी क्या बीमारी है, क्या कुछ हो रहा है। तो साहब ने वो जो पाकिस्तान के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी कि 4-5 हजार प्लेटलेट्स हैं और बस वो सुबह गया कि शाम गया। अच्छा, तो वो लगाया उसके साथ। तो उन्होंने कहा भाई मियाँ ये तो 2-1.5 साल पुरानी रिपोर्ट है, अभी लेट आप जब से यहाँ आए हैं कहाँ से इलाज कराया आपने, क्या दवाई ली, क्या कुछ हुआ, जरा हमें वो सबूत भी दें। तो दूसरी दफा फिर इन्होंने फिर जो है वो इस तरह आई बाई सही करके जो सही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेलीविजन रिपोर्ट कि जब ये पाकिस्तान से चले थे तो इस वक्त वहां के रिकॉर्ड के मुताबिक इनके प्लेटलेट्स को 4-5 हजार थे, लेकिन जब हीथ्रो पे लैंड किया इन्होंने और जब इनका पहला ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें उनके प्लेटलेट्स जो है कोई 2-2.25 लाख हो गए। और पता नहीं वो कतर एयरवेज में जो अंगूर खा रहे थे उसकी वजह थी या वो लंदन की हवा थी, जब वो कतरी हॉस्पिटैलिटी थी जो कि एम्बुलेंस के नाम पे उनका जहाज गया था। अच्छा, कि वो 2-2.25 लाख हो गए और इन्होंने उस रिपोर्ट को क्लासिफाई करा दिया कि वो किसी को वो दिखा नहीं सकते। तो इमिग्रेशन ने, ब्रिटिश इमिग्रेशन ने कहा कि भाई मियाँ वो हमें यहाँ का कोई सबूत दें, फिर भी नहीं दे सके। अच्छा, इन द मीन टाइम मतलब है ये फैमिली तो आपको हमें पता ही है ना कि भाई खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। अच्छा, तो इन्होंने वो मरियम नवाज ने सुना है कि वो है इनकी प्रीति पटेल, उसके होम ऑफिस की सीनियर वो गवर्नमेंट हेड हैं उसकी, उनको गिफ्ट वगैरह भी भेजा था जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनको यानी पहले इन प्रिपरेशन फॉर दिस टू प्रिपेयर हर फॉर दिस। तो लेकिन वो मतलब वहां तो वो तो पाकिस्तान तो नहीं है ना, तो वहां पर कुछ भी है एक सिस्टम है, मतलब वहां तो यानी इस तरह नहीं है कि आपका डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट दे देगा 4-5 हजार जैसा आप कहोगे वैसा बना के। तो बहरहाल तो जब वो उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ये बंदा नहीं दे रहा है कुछ, तो फिर उन्होंने इसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा,
अभी अब लीगली स्पीकिंग, पहले हम लीगल बात करते हैं फिर पॉलिटिकल बात करेंगे। ठीक है। नो लीगली स्पीकिंग ही स्टिल हैज द ऑप्शन, क्योंकि देखो आप यहाँ इवन ऑस्ट्रेलिया में भी आप जब कभी इमिग्रेशन को जाते हो तो व्हेनेवर दे से नो, साथ ही वो कह देते हैं कि जी अगर आप चाहो तो अपील कर सकते हो। अगर आप यानी किसी भी इवन ट्रैफिक के आपको जो मिलती है इन्फ्रिंजमेंट नोटिस, उस पर भी लिखा होता है कि आप या पे कर दो पैसे या अगर चाहो तो अपील कर लो हमारे फैसले के खिलाफ। तो उन्होंने भी एग्जैक्टली इसको राइट ऑफ अपील तो दिया है। अच्छा, लेकिन वहां वो लीगल प्रोसेस में वेटिंग में 6, 7, 8, 9 महीने लग सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये रिव्यू में भी जा सकते हैं। तो यानी कम से कम इनको जो है मेरे ख्याल में, और जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जो सुनी हैं, तो उसके मुताबिक इसको 1.5 साल तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हाँ, 2 साल तक भी टिक सकते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, और ये लोग ऑलरेडी जो इसकी जो हवारी हैं वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि जी ये जब इलेक्शन का मौका होगा तो ये आएगा और फिर उसको हम यानी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और ये मतलब है इनके दे आर वेरी क्वाइट केपेबल ऑफ दिस, क्योंकि ये यानी इनमें दे हैव ए नैक फॉर बिफूलिंग पीपल। ये तो कहते हैं कि मोमिन जो है वो एक बिल से 2 दफा नहीं डसा जाता, लेकिन शरीफ ने तो बड़े बड़े मोमनों को, बड़े बड़े महा मोमनों को बार बार डसा है, उनको गुस्सा दिया, उनको धोखा दिया, और ये फिर आ जाते हैं। और अगेन ये जो है इनका खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। और बदकिस्मती से, पाकिस्तान की बदकिस्मती से अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पेट से सोचते हैं कि खिलाएगा तो कहते हैं। अच्छा, लेकिन मैं फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि यानी इस वक्त जो ओवरऑल पाकिस्तान में जो पब्लिक ओपिनियन है, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कुछ भी जो कर रही है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, बेसिक, यानी अब वो काम हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। हाँ, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है लोगों को। यहाँ पे मैं छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगी, फिर मैं सीमा के पास आऊंगी, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। लेकिन छोटी सी बात, मेरी नाकिस अकल में ये सवाल आता है कि इतनी बड़ी शख्सियत 3 दफा वजीर आजम बने, जिस वक्त रवाना हो रहे थे उस वक्त क्या उनकी टीम ने देखा नहीं था कि इनका पासपोर्ट जो है कुछ माह में एक्सपायर हो जाएगा, इसको हमने रिन्यू करवा के जाना चाहिए था। उस वक्त शायद हुकूमत रिन्यू कर देती, कहीं इसके पीछे भी चाल तो नहीं थी? देखिए शफक, मैं पहले एक और प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि लोग बड़े पता नहीं कैसे कहते हैं कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर, तो भाई मियां 3 बार डिसमिस भी तो हुआ है। ये मतलब है ये बड़े शौक से कि जी वो 3 टाइम प्राइम, वो भाई मैं कहता हूं कोई बंदा 1 बार डिसमिस होता है वही काफी, जिंदगी में वही काफी होता है सबक सीखने के लिए। 2 बार हो गया वो काफी है भाई, 3 बार डिसमिस हुआ है। अच्छा, और वो जब जा रहा था तो प्रोबेबली वो यानी उनका उस एक्साइटमेंट में या जल्दी में या अगेन ओवर कॉन्फिडेंस कि ये तो कोई पासपोर्ट तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये तो हम जब चाहेंगे हम चाहेंगे बनवा लेंगे, हम आ जाए, हम आ लेंगे। हालांकि मतलब है कहने, जब पाकिस्तान की जब मैं बात कर रहा था तो वो अब देखे ना, जिस मुल्क में सीमा कन्विक्ट्स इलेक्शन रैलीज एड्रेस कर रहे हों, जिस मुल्क में convicts are presiding over mainstream political parties, जिस मुल्क में अदालत आपसे पूछे कि अच्छा गवर्नमेंट बताओ ये बंदा अगले वीकेंड के बाद तक जिएगा कि नहीं जिएगा, तो उस मुल्क में यानी इन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कि जी हाँ हम वी विल मैनेज, लेकिन मैं बताऊं कि अब जो है ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो चुकी हैं। अब जो है इनका वो चूरन नहीं बिकेगा, अब इनका चूरन नहीं बिकेगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं हम जो नवाज शरीफ के हवारी जो जिस मुख्तलिफ चैनल्स पर जिस तरह बोल रहे हैं 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कुछ तो लिहाज करें। नाजी साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया। सीमा मैं आपकी तरफ आऊंगी, बड़ी मेहनत करी थी नवाज शरीफ साहब के सारे ग्रुप ने और भारत को बहुत नवाजा था, और भारत ने बड़ी मेहनत करी थी अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब करने में, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब करने में। पर ये जो मूव आया है अफगानिस्तान में,
आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान बड़ा खटक रहा है, जो गवादर का मामला है वो भी खटक रहा है, अब बलूचिस्तान को बार बार ये लेकर आते हैं, और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त भारत में भी बड़ी बेचैनी पाई जा रही है, उनकी मेहनत ना राइगा जाए। तज्जिया चाहूंगी आपसे मैं। एक्चुअली थैंक यू शफक, मैं न्याजी साहब का जो आर्गुमेंट है ना उससे लीड लेकर तो देन आई मूव फॉरवर्ड। न्याजी साहब ने ये बात कही ना कि अब हालात वो नहीं रहे, लेकिन असल हकीकत बात यही है, हमारा मसला ही सबसे बड़ा ये है कि इंस्टीट्यूशनल हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हमारे इतने वीक हैं। एक बिल्कुल रात की एग्जांपल है अरशद नदीम जो एक हमारे जिवेलियन थ्रोअर थे, अगर इंस्टीट्यूशनल बैकअप होता, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होती तो हमारे 23 करोड़, मैं हमेशा 23 करोड़ कहती हूँ क्योंकि एक्चुअल तो 23 करोड़ ही है, अवाम में से सिर्फ 10 लोगों का दस्ता मच जाता ओलंपिक्स में। सिमिलरली जो न्याजी साहब ने कहा कि एक कॉन्विक्ट को इतनी ज्यादा रिलैक्सेशन मिली है, वो ऑब्वियसली हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलेमास है, इंस्टीट्यूशनल हमारा बहुत क्या कह सकते हैं, मैं और सर तो बीइंग इंस्टीट्यूशनल सर्वेंट्स वी नो कि कितना ज्यादा हमारा रॉटन है सिस्टम, बट चेंज इज कमिंग इंशाल्लाह एंड वी आर होपफुल। जहां तक आप बात कर रही हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। मैं आज सुबह भी एक तज्जिया सुन रही थी और मुझे बड़ा अच्छा उसमें उसने ना बड़ा कॉम्पैक्ट सा, हमारे एक एनालिस्ट है इमरान रियाज, आप लोग जानते ही होंगे, टीवी एंकर भी हैं, उन्होंने बड़ा एक कॉम्पैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक एनालिसिस किया और उन्होंने कहा कि जी देखिए, आप अफगानिस्तान को सिर्फ तालिबान की नजर से मत देखें, आप अफगानिस्तान को सिर्फ इस तरह मत देखें कि हम वहां पर इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। अफगानिस्तान इज ए प्लेस जहां बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका की जो हैज़ार्ड मूवमेंट है और यहाँ से विड्रॉल है, वो उसने जो एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, एक शायद न्याजी साहब ने, चूंकि ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मतलब एकेडमिक्स भी उनकी यही है और उन्हें फॉरेन सर्विसेज में भी, तो एक सर को पता होगा, एक ऑथर बेरी पोजन है, उन्होंने सर आपको, अगर आपको याद होगा कि उन्होंने बताया कि जब भी कोई बड़ी लार्ज पावर्स जो होती हैं वो जब डिसइंटीग्रेट करती हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम की क्रिएशन के बाद जो नीचे ग्राउंड पे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं वो उस वैक्यूम को फिल इन करने, मतलब एक आप साइंटिफिक वो जहन में ले आइए ना कि जैसे ही कहीं वैक्यूम होता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स उनको आगे उस वैक्यूम को फिल करते हैं। सिमिलरली अफगानिस्तान में भी यही हो रहा है। सबसे ज्यादा टैगिंग बैशिंग पाकिस्तान की हो रही है कि जी पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ की वजह से वहां पे स्टेबल नहीं हो रहे हालात। तो मैं तो आज ना सोच रही थी, वैसे आपने जब मुझे बताया कि आज हमने ये बात करनी है, तो मैंने कहा व्हाई शुडंट वी लाइक टेक अ क्रेडिट फॉर दिस कि जी पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान ने रशिया, अमेरिका, इंडिया, मीन ऑल दिस पावरफुल स्टेट्स एंड इट्स ओनली द teeny tiny Pakistan with a teeny tiny ISI is taking care of everything in the region. So if this is the case, I should be very proud of like being Pakistani कि जी हम लोगों ने ये कर दिया। But नहीं, having said this, it's not ISI जो तालिबान को सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल गलत है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एकेडमिक्स को फॉलो करती हूँ, बहुत ही स्ट्रांगली दे बिलीव इन दिस, और ये बिल्कुल यानी वो कन्विंस्ड हैं कि जो अफगानिस्तान में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो पाकिस्तान कर रहा है, विच इज नॉट द केस। अफगानिस्तान की प्रॉब्लम फिल्टर होकर हमारी तरफ आएगी। आज सुबह की जो डेवलपमेंट को जो मतलब कल की है, जो आज सुबह आई है मंजर आम पर, किसपिन बोलते जो हमारा बॉर्डर है, चमन बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, उस पर तालिबान ने उसको बिल्कुल सीज कर दिया है। They are asking for certain relaxation from the government of Pakistan. They want the trade to go on. और उन्होंने कहा कि जी आप हमें सपोर्ट करें या कि हमारी जो एक एम्प्लॉयमेंट, हमारी जो वहाँ की अनएम्प्लॉयड लेबर है उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, और वीजा टेन्योर जो, क्योंकि एक ये राहदारी सी मिलती है इनको कुछ घंटों की, जो सुबह शाम जो इनकी ट्रैफिक होती है, हमारी जो लेबर है पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान जाती है, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए। इस बात को ही सिर्फ एक प्ली बनाए और हम सोचें कि अगर पाकिस्तान की और तालिबान की इतनी गठजोड़ है तो वो कभी भी वो उस चीज को बंद ना करते। वो कहते जी ठीक है जी, हमारी तो आपस में बड़ी हम तो बड़े लवी डवी हैं तो जस्ट लेट इट गो, लेकिन उन्होंने उस बॉर्डर को बंद कर दिया टिल द टाइम के पाकिस्तान उसको नील डाउन करे और उस बात को डिमांड को माने, जो कि मैं नहीं समझती कि बहुत जायज डिमांड्स हैं कि जी हम क्यों टाइम पीरियड बढ़ाएं, इतनी सी जगह पे वो आके उन्होंने लेबर करनी होती है और मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर वो पाकिस्तान के बिल्कुल डीप इन हार्ट इन पाकिस्तान वो पहुंच जाते हैं, या पाकिस्तानी लेबर वहां पहुंच जाती है। तो वो जो एक इस वक्त हवा एक हाइप क्रिएट की हुई है ना, जिस तरह हमारी पाकिस्तानी मीडिया हाइप क्रिएट करता है ना,
पाकिस्तानी मीडिया जो नहीं, वो छोटा सा एक एग्जांपल है ऑफ द वर्ल्ड मीडिया जो हाइप क्रिएट कर देते हैं, जो एक्चुअली वो बात नहीं होती, सब स्पेकुलेशन पे चलते हैं। अब जैसे नवाज शरीफ को, जैसे सर ने बिल्कुल ही राइटली सेड, राइटली आइडेंटिफाइड कि बार बार ये हाइप क्रिएट करते हैं कि ही इज अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, बट नोबडी हैज एक्चुअली हाईलाइटेड कि ही इज अ 3 टाइम डिसमिस्ड पर्सन आल्सो। उसको हमेशा किसी ना किसी एलिगेशन पे उतारा गया, इट इज करप्शन मेनली जिस पे उतारा गया। तो इस चीज को कोई नहीं हाईलाइट करता। हम जो हमारा मीडिया है वो जिस चीज को हाईलाइट करना चाहेगा बस उसी को करता है, हाफ पिक्चर दिखाते हैं, इवन हाफ भी नहीं, जो बल्कि उनको ज्यादा सूट करती है। इस वक्त पाकिस्तान द वीकेस्ट स्टेट इन द रीजन इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी, वो उनको बहुत आसान लग रही है उसको टैग करना। वो चाइना को टैग नहीं कर सकते, वो इंडिया को टैग नहीं कर सकते, वो रशिया को टैग नहीं कर सकते, वो सेंट्रल एशियन पब्लिक्स वो तो उसमें आती नहीं, उनको टैग नहीं करते। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसको टैग करें, क्योंकि यहाँ पे स्कोर सेटल करना है इंडिया ने। आज जो एक और नई डेवलपमेंट है, ज़रनज, इफ आई एम सेइंग प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, जो कैपिटल है, जो ईरान के पास वाला प्रोविंस है ऑफ अफगानिस्तान, उस पर तालिबान का कब्जा डिक्लेयर्ड हो गया। तो विच इज बहुत बड़ी ये एक न्यूज है और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज फॉर इंडिया है। हार्ट ब्रेकिंग न्यूज इंडिया इसलिए है कि जो इन्होंने जो कनेक्ट किया था रोड चाबहार तक ईरान और अफगानिस्तान के थ्रू, वो दैट वाज द रोड जो इन्होंने ये था कि हमारी जो ट्रेड चलेगी वो इस रूट के थ्रू चलेगी, फ्रॉम सी से आएंगे, चाबहार पोर्ट से एंटर होंगे फ्रॉम ईरान एंड देन दे विल गेट इनटू अफगानिस्तान। द प्रॉब्लम विद इंडिया सो फार, अफगानिस्तान में वो इतना इन्फ्लुएंस करने के बावजूद इन्फ्लुएंस नहीं कर सके क्योंकि बॉर्डर कंटिन्यूटी नहीं है, विच वाज द केस इन बांग्लादेश, जहां पर उन्होंने बाकायदा मुक्ति बानी फोर्स उतारी थी। तो यहाँ पर ये उनको एक एज नहीं मिल रहा था और ईरान के थ्रू वो ये पूरी अपनी लॉबिंग कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी पिछले सालों में, कई सालों में इतनी इफेक्टिव नहीं थी। आई डोंट वांट टू नेम अ पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे नवाज शरीफ साहब भी आते हैं उसमें, कि उन्होंने इतनी रॉबस्ट किस्म की अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाई जिसमें आप अलायंस कर सके, रीजनल अलायंस जो हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जिसमें ईरान है, कि आप उसके साथ आप एक अच्छी रिलेशनशिप करते हैं और हाँ जी, बजाय इसके आपने उसको एनॉय किया। हमारे यहाँ शिया सुन्नी का कार्ड खेला जाता है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ईरान शिया स्टेट, तो जी हमने उसके साथ ताल्लुक नहीं रखना, विच इज नॉट द केस। देखिए देयर इज नो को एंड फ्रेंड इन, जब व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई रिलीजन नहीं है। चाइना से हमारी कोई रिलीजियस एफिनिटी नहीं है, तो इट इज समथिंग गुड। यहाँ मैं एक चीज और ऐड करूँ आपसे, मैं चाहूंगी कि आप इस पे भी बात करती रहें। एक तो मुहर्रम भी आ रहा है और उसके बाद फिर से वो शिया सुन्नी फसादात उभारे जाएंगे और वो भारत जो है वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के जरिए से अंदर एंटर करवाता था दहशतगर्दों को। अभी ये खबर आई है आज सुबह की कि अमेरिका ने अपने सारे बाशिंदों को कहा है फौरन पहली फ्लाइट पकड़ लें, अफगानिस्तान को छोड़ दें। तो क्या ऐसा क्या होने वाला है जो अमेरिका इतना परेशान हो के अपने उनको, हम जो जब हम बच्चे होते थे ना, तो हमने किसी को बू करना होता ना, शेम, तो वी यूज्ड टू डू टेक दिस साइन, सो दिस इज अ बू फॉर इंडिया, फॉर अमेरिका आई शुड से। आई एम लाइक कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग दिस कि आप 20 साल वहां रहे, you could not produce an environment, you could not create an environment which was safe for the people, which was safe for you as invader. आप कंकर आपने किया और आपने इतनी भी जुर्रत, इतना करेज नहीं है अब बैशिंग पाकिस्तान एंड ISI और बैशिंग तालिबान। इट मीन्स के तालिबान इतने स्ट्रांग है और ISI इतनी स्ट्रांग है कि जो यूनिपार्सोलर सुपर पावर है उसको इतनी भी सिक्योरिटी, इतनी सेफ्टी नहीं है कि वो उसके जो सिविलियंस जो एक डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहते हैं वो भी वहां पे भी सेफ नहीं है। तो मुझे देखिए, इसको अगर मैं इस तरह देखूं कि एक दूसरे लेंस से मैं कहूं कि जी देखें अफगानिस्तान में तो बस कैओस हो गया और वहां पे बिल्कुल अनार्की फैल गई और ये हो गया, इस वजह से US के सिटीजन वहां पे सेफ नहीं थे इसलिए उसने निकाल लिए, ये है करंट सिचुएशन। बट उसके पीछे जाएं आप, क्या आपने 20 साल में कुछ नहीं किया? इतना ट्रिलियंस ऑफ मनी आपने लगाया, इतने बंदे, इतने आज तक HR चैंपियन, जो बिल्कुल न्याजी साहब ने कहा कि लंदन ब्रिटिश जो है वो अपने आप को समझाता है कि जी मैं बहुत HR चैंपियन हूँ और मेरे यहाँ तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मनी स्टैशिंग वहां होती है, फैटफ की इम्पोजिशन हमारे यहाँ लगती है, पैसा हमारा जाता है लेकिन सैंक्शन हमारे ग्रे लिस्ट में हम आते हैं। पैसा जहाँ जाता है दे आर द बेनिफिशियल कंट्री बट दे डोंट हैव एनीथिंग, सो नोबडी इज क्वेश्चनिंग देम। सिमिलरली वहाँ पैसे की बात थी, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इश्यूज है कि अमेरिका जब यहाँ आता है अपने स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के लिए, यहाँ अपनी प्रेजेंस फील करवाता है, बंदे मार देता है, यहाँ से जितना नोबडी नोज अप टिल नाउ
कोई इसमें किसी ने मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि जो अफगानिस्तान which is a country, a land which is full of minerals, प्रीशियस मिनरल्स, वहां से कितनी एक्सकवेशन हुई है, कितना वहां से लेके जा चुके हैं, कितने रेलिक्स वहां से लेके जा चुके हैं, nobody knows or nobody has actually investigated on this issue. The only issue which has been highlighted or highlighting like has been highlighting right now कि जी ISI ने बहुत कर दिया, पता यार मुझे समझ नहीं आती कि 5 लाख की पाकिस्तान की फौज ने क्या दुनिया में तूफान मचा दिया कि जी दुनिया जो है वो बस कहती है कि अगर पाकिस्तान की फौज इतनी ही जबरदस्त है तो मुझे तो मेरा ख्याल है कि तमाम यूनाइटेड नेशंस में बैठ के ये बात यूनानिमसली ये बात को मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान इज द ओनली सुपर पावर. दिस इज द केस. इफ पाकिस्तान इज सो वेरी पावरफुल, हाँ जी बिल्कुल, मतलब मैं तो इस बात पे ये चीज बहुत गलत है वो जब ये बात करते हैं, ये बात कहते हैं कि ISI क्यों सपोर्ट करे, ISI क्यों टेररिज्म को सपोर्ट करेगी इन अफगानिस्तान, क्योंकि उसकी इन्फिल्ट्रेशन डायरेक्टली बलूचिस्तान में होती है, डायरेक्टली KP में होती है, डायरेक्टली अस्फाल फाटा में होती है, और वो सारी चीज सिर्फ टेररिज्म इस तरह से नहीं होती कि बम फट रहे हैं. सबसे ज्यादा जो नुकसान पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं वो ये है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म. देखिए जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आती है ना, दैट इज वेरी डेविस्टेटिंग, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है. So that's the only उन्होंने मजहब के नाम पे. न्याजी साहब, मैं आपसे जो अभी सीमा की बात से मेरे ध्यान में सवाल उठा कि ये तो बड़ा मतलब बेबाक और दो टोक बयानात जो इमरान खान ने दिए और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी दिए, इससे जाहिर हुआ कि जनाब वो बड़े सिंसियर भी हैं कंट्री के साथ और अब वो किसी भी किस्म की कोई गुलामी इख्तियार नहीं करेंगे, कोई गुलामी कबूल नहीं करेंगे. पर न्याजी साहब, इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए और भी बहुत कुछ जरूरी होता है, तो अब आपको लगता नहीं है कि कहीं कहीं कमजोर पड़े हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि हम कश्मीर का मसला भी अभी तक हल नहीं करवा सके, कश्मीरी हमसे बहुत नाराज हैं. जी सर. देखिए सीमा, ये आपके इस सवाल से पहले 2-3 छोटी-छोटी बातें जो आई पे रह ना जाएं, अगर आपकी इजाजत हो मैं वो कर दूं. ये 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही थी. अच्छा तो अभी जिस तरह आपने भी कहा और सीमा ने भी कहा कि लोग कहते हैं कि जी 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर था, उसके साथ कोई रियायत होनी चाहिए या उसके साथ बेहतर सलूक होना चाहिए. मैं कहता हूँ ये दिस इज सच ए प्रीपोस्टरस आर्गुमेंट कि चलो एक बच्चा है वो गलती करता है तो आप कहते हो चलो छोड़ दो, माफ कर दो. अच्छा वो एक बाबा है, अच्छा पढ़ा लिखा है और वो प्राइम मिनिस्टर है, वो स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर उसके हाथ में है ही. अच्छा वो गलती करता है तो मैं कहता हूँ अगर उसको तो 3 गुना ज्यादा सजा मिलनी चाहिए. बात. अच्छा नंबर 2, अभी जो जिस तरह यानी सीमा ने जो बात की है ना, मैं उसको कंसेप्चुअलाइज करता हूं तो फिर देन मैं उसके आगे बढ़ूंगा. देखिए कि एक आजकल जमाना है नैरेटिव का. अच्छा अमेरिका का एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव लेके चलता है इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिका के अलाइज, वल्नरेबल गवर्नमेंट्स, करप्ट पॉलिटिशियंस. अच्छा मैं अपनी दानिश में सुबह उठता हूं तो मैं 10 अखबार पढ़ता हूं, वाशिंगटन पोस्ट पढ़ता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता हूं, मैं फिर इधर सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड पे आ जाता हूं, मैं इकोनॉमिस्ट पढ़ता हूं, मैं न्यूज वीक पढ़ता हूं. अच्छा और 8-10 को पढ़ के बाय द एंड ऑफ द डे मैं वो सब इंटरनलाइज कर लेता हूं और फिर जब मैं बोलने बैठता हूं कहता हूं जी ये मेरा ओपिनियन है. अच्छा और मैं ये भूल जाता हूं ये सब जो इंफॉर्मेशन है एक ही टूटी से सब आ रहा है, वो एक नैरेटिव है. अच्छा तो वर्ल्ड मीडिया, थिंक टैंक्स, इंटेलेक्चुअल्स, वो सब जो है वो नैरेटिव वो आ रहा है, हमारे वो ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं. नो मैटर हम कितना अपने आप को तसल्ली देने के लिए कितना मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल पढ़ते हैं, उसमें जो मेन प्रिंसिपल क्लास होती है वो एक ही होती है. अच्छा अब यानी अफगानिस्तान यानी आपने कहा ना कि
शाह महमूद कुरैशी या ये गवर्नमेंट या कश्मीर क्यों, भाई मियाँ ये यानी पाकिस्तान का आप पोजीशन देखें दुनिया में क्या है, अमेरिका का नैरेटिव, यूरोप का नैरेटिव, इंडिया का नैरेटिव, ये सारे नैरेटिव आपके नैरेटिव के खिलाफ हैं। नंबर 2, जो यानी एज ए डिप्लोमेट जो हमें कॉलेज में पढ़ाया गया था कि जी सॉवरेन स्टेट्स आर सॉवरेन और स्टेट्स आर इक्वल, लेकिन जब हम डिप्लोमेसी में गए तो देखा कि भाई सम स्टेट्स आर मोर इक्वल देन द अदर्स। जब मुझे किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलना पड़ता था तो वो पहले मैं नोट और बैल लिखता, फिर उसका उनकी लोकल लैंग्वेज में तर्जमा कराता, फिर मैं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को भेजता, फिर उसको मैं फोन करता, फिर वो कहता जी अच्छा ठीक है जी अगले हफ्ते मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब अमेरिकन एम्बेसडर को मिलना होता तो वो फोन करता कि जी मैं इतने बजे आ रहा हूं। तो बात ये है कि ये कहना आसान है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने कश्मीर पे जो कुछ जितना कर सकता था उससे ज्यादा किया है, और अब नहीं, आज से नहीं, मतलब एक वो एफर्ट रही है। हाँ, पिछली हुकूमत के दौर में हमें मना था कि हमने कुछ यानी इंडिया को वी डोंट हैव टू टेक ऑन इंडिया खुलेआम। मैं यानी एक ब्रीफिंग में मैं इतना आपको बता सकता हूं कि एक ब्रीफिंग में जब यानी उस वक्त के हाकिम वक्त को ब्रीफिंग दी जाने लगी तो उसने जब शुरू किया इंडिया, उसने कहा तो हाकिम वक्त ने कहा कि इंडिया के बारे बात मत करो, कोई और बात करो। ओह माय गॉड। अच्छा, तो देखिए जो नैरेटिव है हमने, अब देखो ना यानी शुरू में, अच्छा हम यूनाइटेड नेशन में इंडिया गया, नेहरू लेके गया कश्मीर को यूनाइटेड नेशन में। अच्छा, उस वक्त हमारे सारे इंडिया अमेरिकन बास्केट में थे, सोवियत यूनियन ने उसको वीटो कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम अमेरिका के पीछे लग रहे, हमें मिला कुछ नहीं। अच्छा, अब अमेरिका ने इंडिया के सर पे हाथ रख लिया है, तो मुझे बताओ कि यानी सिवाय जंग के आप कश्मीर का क्या कर सकते हो? अच्छा, जंग आप नहीं कर सकते, आपके ऊपर वो टेररिज्म का टैग ऑलरेडी लगा हुआ है। डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली मुझे बताएं क्या वो चीज है जो पाकिस्तान करे जो नहीं कर सका आज तक। मैं ऐड वन थिंग? यस जी जी जी, मैं बिल्कुल सर से एग्री करती हूँ। द कश्मीर इशू इज स्टिल अलाइव बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, दैट्स इट। Otherwise, had it been India, it would have died so long ago. और इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स थे इनिशियल, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड ऑल दीज, दे वर इन फेवर ऑफ सेपरेट, जो एक इंडिपेंडेंट उसका ऑटोनमस स्टेटस है वही पे। ये अब जो है उसका स्टेटस जो चेंज मोदी ने किया है, दैट्स टोटली उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, और उनके जो उनके फाउंडिंग मेंबर्स थे उनकी जो एक परसेप्शन या एक उनका कॉन्सेप्ट था फॉर दिस एरिया, वो उसके भी अगेंस्ट जा रहा है। सो आप ये जो कह रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने इनफ नहीं किया, whatever has been done by the state of Pakistan, I'm saying, not the people, state of Pakistan, that's why the issue is still alive. Otherwise it would have been dead issue, कोई भी ना होता, कहीं पे भी ये बात ना होती। अभी भी HR की कोई भी आती है उसमें रिपोर्ट पर कश्मीर के बारे में बात की जाती है, although के ऑस्ट्रेलिया इज वेरी मच प्रो इंडिया, बट स्टिल कश्मीर का इशू यहाँ पे भी डिस्कस किया जाता है। सो इट्स नॉट अ डेड इशू, पाकिस्तान हैज डन व्हाटएवर पाकिस्तान कैन कुड डू। और बिल्कुल हमारी पोजीशनिंग इन द वर्ल्ड स्टेटस, स्ट्रेटेजिकली लोकेशन हमारी जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी मिलिट्री पावर और आपकी इकोनॉमिक जो आपकी सिचुएशन है, कंडीशन। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बहुत खराब है। इट हैज टू ग्रो फर्दर, जब ये बढ़ जाएगी, जब ऊंचे हो जाएंगे तभी हम बात कर सकेंगे। मिलिट्री को तो अमेरिका भी कहता है कि जी हम बहुत जबरदस्त है, तो आई टोटली एग्री विद देयर रेटिंग, आई टोटली एग्री विद देयर सेइंग कि जी पाकिस्तान मिलिट्री इज नंबर 1। यस, सो आई एम सो प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ज्यादा लंबा ना हो जाए, सवाल आप दोनों से करूंगी, लेकिन मैं दोबारा नियाजी साहब के पास जाने से पहले आपसे पूछूं कि जो तालिबान का फेवर करने की वजह से इमरान खान को दहशतगर्दों का सपोर्टर कहा जा रहा है पूरे दुनिया में, तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आ गई तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को फायदा होगा?
No, if it is like if Afghani people are happy with Taliban, why shouldn't we be happy with them? We just want a peaceful solution. There are peaceful government in Afghanistan. It's not that we want a certain group of people to be there, whether it's Taliban, whether it's an allied or कोई alliance में चल रहा है या coalition में चल रहा है, whatever, whoever. देखिए, owners जो है उनकी public पर है. Whatever they choose, a person or a government or a party or a group to be ruled or and then वो जो उनका रूलर होगा, हमें क्या एतराज है? हमें सिर्फ एक पीसफुल नेबर चाहिए. इंडिया में कोई भी आ रहा है, वी डोंट केयर whether it's Modi or whether it's Rahul Gandhi. The only thing we want a cordial relationship with a peaceful country. Similarly, चाइना में कौन है? वी डोंट केयर. हमें अपने घर को साफ करना है. वी डोंट केयर कि वहाँ कौन आ रहा है. अगर तालिबान उनको वहाँ पे वो इलेक्ट कर लिए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, तो इट्स ओके विद अस. अगर उनसे अमेरिका पीस डील कर सकता है, अगर उससे इंडिया पीस डील कर सकता है, अगर उससे मतलब उनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं, रशिया अभी सब कर रहे हैं, तो फिर देन व्हाई नॉट पाकिस्तान? व्हाई पाकिस्तान इज बीइंग स्टिग्मेटाइज्ड कि जी हम कोई तालिबान के साथ अगर कोई बात करेंगे तो पता नहीं शायद हम कोई दुनिया में कोई chaos ले आएंगे. वी आर नॉट द क्रिएटर ऑफ तालिबान. वी डिडंट क्रिएट तालिबान. इस माशाल्लाह से पैट्रोनेज अमेरिका की और सऊदी फंडिंग थी जिसकी वजह से तालिबान आर हियर इन दिस वर्ल्ड. तो मैं तो इस चीज को बड़े स्ट्रांगली कहती हूँ, अगर इफ दे आर देयर देन इट्स ओके. हमारे तो नेबर हैं. बात अच्छा हो हमारे पे कोई आंच ना आए. नियाजी साहब, मैं थोड़ा खुदगर्ज बन के अगर आपसे ये सवाल करूं कि जनाब ऑस्ट्रेलिया भी अब मेरा वतन है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, और मैं अगर ये खुदगर्जी दिखाऊं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के होने चाहिए, ये रिलेशन कैसे डेवलप होगा? कुछ लगता नहीं है आपको कि नजरअंदाज किया है पाकिस्तानी हुकूमतों ने ऑस्ट्रेलिया को? नहीं, बिल्कुल नहीं. पाकिस्तानी हुकूमतों ने ऑस्ट्रेलिया को नजरअंदाज नहीं किया है. ऑस्ट्रेलिया की अपनी स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं. मैं जब यहाँ 2000 में आया था, तो मैं कहता हूँ कि मेरे उस स्टिंट में मैंने आई सॉ बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. जब 2000 में मैं यहाँ आया था तो पाकिस्तान अमेरिका के जेर अताब था न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से. उसके बाद मुशर्रफ के टेक ओवर की वजह से कि वो जनरल ने जमहूरियत को हटा के वो टेक ओवर किया है. अच्छा, तो वो उन हालात में जब मैं यहाँ आया, अच्छा, तो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ माय कैरियर. अच्छा, लेकिन फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि 9/11 हो गया. अच्छा, जब 9/11 हुआ तो फिर इन्होंने अमेरिका ने पूछा मुशर्रफ से कि विद अस आर अगेंस्ट अस. उसने कहा जी वेरी मच विद यू. अच्छा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के हम डार्लिंग हो गए, ऑस्ट्रेलिया हमारा डार्लिंग हो गया. अच्छा, तो इसमें यानी अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस यदि ज्यादा नहीं हो सके तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई कमी नहीं रही है. ये ऑस्ट्रेलियंस वो करते हैं जो वाशिंगटन आपके साथ करता है. वाशिंगटन, exactly. ये एक लिटमस टेस्ट है. बिल्कुल ये अभी तो इसलिए इसमें मैं देखो, मुझे अब रिटायर हुए भी मुद्दत हो गई है. मैं यानी ठीक है मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है मेरे, लेकिन मैं अनरीजनेबली डिफेंड नहीं करूंगा उसको, यानी फॉरेन ऑफिस को या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को. पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं है. अगर कोई कोल्ड शोल्डर है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है. वो इंडिया नवाज है, मतलब यहाँ ऑस्ट्रेलियन जो है वो देखिए वो एक पैकेज है, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक पैकेज है. वो क्वाड का एक हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया भी और इंडिया भी. और जैसे मैंने सीमा के आने से पहले आपसे बात कर रहा था, आप क्वाड पे एक प्रोग्राम करें और उसमें फिर हम इस चीज को जो है हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह. फाइनल वर्ड्स सीमा आपकी तरफ से, फिर उनकी तरफ से. प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा शेयर और लोग देखें, इसलिए हम इसको शॉर्ट करते हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम में और बात करेंगे. फाइनल वर्ड्स आपके इंटरनेशनल रिलेशन. सही कह रहे हैं जो आप कह रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया की क्यों नहीं रिलेशनशिप हो रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वॉशिंगटन पॉलिसी टो करता है. एंड सिंस अमेरिका और इंडिया का नया एक लवली बॉन्ड है, रोमांटिक पीरियड, एक हनीमून पीरियड उनका चल रहा है. सो दैट्स व्हाई इट्स मोर ऑफ अ वॉशिंगटन यू कैन से के जी एक एजेंडा को टो है इंस्टेड के जी इंडिया के साथ आपकी इनकी ज्यादा वो अलायंस अदरवाइज है. वरना चाइना ज्यादा इनके करीब है. अगर हम ट्रेड टाइज में देखें तो चाइना से ज्यादा ट्रेड है. चाइना की अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया से एक दिन
चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट उठा ले, सिर्फ चाइनीज रियल स्टेट, वेयर विल ऑस्ट्रेलिया बी? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. कैश पे इन्होंने सब कुछ लिया हुआ है यहाँ पर. So, अगर वो एक दिन में अपनी इन्वेस्टमेंट उठा लें, सो इट्स मोर ऑफ, हमेशा ये पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं, ट्रेड रिलेशनशिप तो बाद में आते हैं. तो पॉलिटिकल अलायंस, चूंकि ये क्वाड का सर ने बिल्कुल एब्सोल्युटली इज राइट, जापान, इंडिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इनका जो चारों का एक चौखटा बना हुआ है, उस चौकोर में दे आर लाइक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उनकी सबसे टॉप मोस्ट ये है टू कंटेन चाइना. तो वो आप बिल्कुल नेक्स्ट प्रोग्राम रखेंगे, कंटेनमेंट ऑफ चाइना पे वी कैन ऑलवेज. फाइनल वर्ड ध्यानी साहब. मैं अफगानिस्तान पे जी आप बोले. मैं अफगानिस्तान पे मेरी वाइंड अप करना चाहूंगा कि जिस तरह सीमा ने कहा ना कि अमेरिका ने सडनली उसकी जो वो निकल गया वहां से, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया. मैं समझता हूं कि ये जो इस यानी इतनी जल्दी से जो वो भागे हैं, इट्स नॉट विदाउट रीजन. उसकी वजह है, देखो कि अगर अफगानिस्तान में अमन हो तो किसको फायदा है? चाइना को फायदा है सीपेक के लिए, पाकिस्तान को फायदा है सीपेक के लिए, रशिया को फायदा है कि एरिया में स्टेबिलिटी होगी. लेकिन अगर अफगानिस्तान में गड़बड़ रहती है तो हिंदुस्तान को फायदा है कि और अमेरिका को फायदा है. अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि इस खित्ते में अमन हो, और ये जो है चाइनीज सीपेक और ये या हमें एक्सेस मिले सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में. सो देयरफॉर ये देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस, और वो जानबूझ के वो ये चाहते हैं कि यहाँ फसाद रहे. बिल्कुल सही. तो ये वैक्यूम डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है ताकि इधर जो है सिविल वार वो चाहते हैं यहाँ हो, इंस्टेबिलिटी वो चाहते हैं यहाँ हो, एंड दैट इज व्हाट वो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ना तालिबान पूरे को कैप्चर कर सकते हैं, ना नॉर्दर्न अलायंस पूरे को. तो ये लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और इधर जो है जो हम ये रीजन जो है वो सफर करता रहेगा. अमेरिका बादशाह अपने घर में जाके बैठा. और वो क्या है, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम. और कोशिश यही की जा रही है कि ये इस तरह घमसान की जंग रहे तालिबान और आम उसकी दूसरी कौमियों के तौर पर, और पाकिस्तान का तरक्की के सारे मंसूबे जो है वो खत्म हो जाए, ऐसा. और उनका ये है, उनका ये है, अमेरिकन को कहते हैं ना कि आफ्टर मी द डिल्यूज, और पंजाबी में कहते हैं कि कख नहीं रहा अपना ते तीला नहीं रहने देना किसी का. देखिए सर, पाकिस्तान is bound to rise. I believe in this. Man, I'm living with this faith कि पाकिस्तान is bound to rise, and इंशाल्लाह it will rise. इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा और इसी तरह तरक्की करता हुआ नजर आएगा. मुश्किल वक्त जरूर आ रहा है और मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त को हमने बड़ी हिम्मत से गुजारना है और पाकिस्तान को उरूज पर पहुंचाना है. 14 अगस्त करीब है, अपना बहुत ध्यान रखें. जो आजादी की जंग थी उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दोबारा ये समझे एक जंग है और हमने उसमें कामयाब होना है. अपना बहुत ख्याल रखें. नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें. खुदा हाफिज.